In the last class, we had already discussed that liquids also exert pressure. Liquids exert pressure. We had discussed that liquids exert pressure at the base of the container or the water body, which depends upon the height of the water column. We also discussed that water is exerting pressure or liquids exert pressure. So we also discussed and we saw in the experiment, जो liquids होते हैं, they exert pressure on the walls of the container also. And the third last thing what we studied, as we move down, the liquids exert equal pressure at the same depth, and pressure goes on increasing as you're moving down into the water body. And हमने इसके लिए we had discussed that is why the deep sea divers जो होते हैं, they will have to wear a special suit, because अगर वो ऐसा नहीं पहनेंगे, so they will be crushed under high pressure. As you're moving down into the sea, the water pressure is increasing, the liquid pressure is increasing. Now at the same time, we also discussed that air also exerts pressure. हम कैसे रिकॉल कर सकते हैं एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर? जब हम we blow air into a balloon, it becomes inflated, और inflate होकर, अगर आपने नोट किया होगा, तो it is exerting pressure on the walls. और अगर आपने नोट ये भी किया है कि अगर हम थोड़ी सी एयर ब्लो करते हैं, then we have to hold its mouth so that the air does not escape. All right. And another common experience when you are filling air, pumping air into the tube, your cycle tires, है ना, bicycle के tires की जो tube होती है, तो उसमें जब आप air fill करते हो, it gets inflated. और अगर उसमें कोई hole, छोटा सा भी hole होता है, the air pressure is released and it becomes flatter. हमें ये भी पता लग गया कि air is exerting pressure on the walls of the inflated balloon. All right. So along with the liquids, gases too exert pressure on the walls of the container. Now we know that there is air around us, all around us air is there, and this envelope of air को हम क्या कहते हैं? We call this envelope of air which is all around us, we have studied about it. It is called as atmosphere. I asked us to think air है, and we know it that it extends many kilometers, many hundreds of kilometers above the earth, and this is called as atmosphere. ये जो atmosphere which is above the earth exerts a pressure everywhere, and that pressure is termed as atmospheric pressure. So pressure exerted by the air around us is called as atmospheric pressure. Now let me show you an activity to know why we don't feel this pressure, or what happens why we are not feeling the pressure of the air all around us. और कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिससे हमें पता लगेगा कि एयर प्रेशर इज वर्किंग अराउंड अस. लेट अस सी इट. We know that the atmospheric air is extending up to many kilometers above the surface of the earth. All right. So this envelope of air around us is called as atmosphere. So atmosphere extends up to many kilometers above the surface of the earth. And the pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. As you can see it here, the pressure is being exerted from all the sides on us, on everything around us. There is a pressure being exerted, and that is called as atmospheric pressure. We are already aware that pressure is equal to force upon area, force per unit area. So if we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it, एक unit area imagine कीजिए और एक very long cylinder standing on it filled with air, then weight of the air जो इस cylinder में है वही atmospheric pressure. Do you understand? We are imagining a unit area. Unit area means 1 by 1, एक unit 1 meter into 1 meter area का एक imagine कर रहे हैं area, and there is a very long cylinder
standing on it which is filled with air. ठीक है, एंड जो वेट ऑफ द एयर होगा जो कि इस सिलेंडर के अंदर है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, this cylinder we are imagining. So weight of the air is the atmospheric pressure. But how large or how small is the atmospheric pressure? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, to find out how large or how small. हमने एक शक्कर लिया, एक रबर शक्कर लिया है. It looks like a small rubber cup and we'll press it hard on the smooth plain surface. ठीक है, and now if you try to pull it out, वो उसके ऊपर स्टक हो जाता है. ये हमारे पास कई बार ऐसे पेग्स आते हैं जो हम वॉल के ऊपर लगाने के लिए, छोटे छोटे हैंगिंग्स आते हैं वॉल हैंगिंग्स के लिए, तो ये हुक्स की तरह आते हैं विद रबर शक्कर. ये हमारे घर में कई बार कॉमनली मिल जाते हैं, तो हम उसको वॉल के ऊपर स्टिक कर देते हैं एंड देन इट रिमेन्स देयर, और हम उसके ऊपर अपनी की चेन्स, कीज या फिर कोई और छोटी हैंगिंग्स होती हैं वो हम उसके ऊपर हैंग कर देते हैं, बट इट डज नॉट कम डाउन. ठीक है, तो if you try to pull it off from the surface, it will not come out. इसका रीजन क्या है? जब हम उसको प्रेस कर रहे हैं शक्कर को, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप, ये देखिए यहाँ पर कप और सरफेस के बीच में जो एयर है वो एस्केप आउट हो जाएगी, और जैसे ही वो एस्केप आउट होगी तो शक्कर जो है स्टिक कर जाएगा टू द सरफेस बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज वर्किंग ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड. अब अगर आपने शक्कर को पुल करना है ऑफ द सरफेस, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी दैट शुड बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब देखिए इट्स नॉट एबल टू पुल इट आउट, अब आपको और ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. इसमें क्या हुआ था, शक्कर के बीच की एयर निकल गई थी, तो अंदर में कोई एयर नहीं है. नाउ यू हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स बिकॉज ऊपर से एयर जो है वो ऐड कर रही है. सो इट गिव्स यू एन आइडिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत लार्ज है. एंड अगर पूरी एयर हम रिमूव कर देते हैं शक्कर में और सरफेस के बीच में, अगर हम पूरी एयर रिमूव कर देते हैं, देयर इज नो एयर एट ऑल, टोटल वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, so it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface अगर बिल्कुल भी एयर नहीं है. पर ये तभी हो सकता है अगर ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, दोनों का सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, तो बिल्कुल एयर को हम वैक्यूम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ यू नो दैट इट इज वेरी वेरी लार्ज. पर अगर ये वेरी लार्ज है तो हमें क्यों नहीं फील होता है? Why we do not feel the pressure, atmospheric pressure on us? ठीक है ना, तो अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील करना है, if you have to feel the atmospheric pressure, you will have to imagine the weight of an air column. एयर कॉलम का वेट हमें इमेजिन करना पड़ेगा of the atmosphere into and an area of 10 into 10 centimeter, which is equal to almost 1000 kg. This much mass. ठीक है, मतलब मेरा अगर हेड, जो एरिया ऑफ माय हेड है, इट इज अराउंड 10 into 10 सेंटीमीटर, तो कितनी एयर मैं अपने सिर के ऊपर कैरी कर रहा हूँ? आई एम कैरिंग almost about 10 into 10, that is 1000 kg of 1000 kg of air I am carrying over. मतलब इतने वेट का ऑब्जेक्ट मैं अपने ऑलमोस्ट मास का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं कैरी कर रही हूँ अपने हेड के ऊपर. और why we are not crushed under this? Why we are not crushed? इतना भारा है और अगर इतने एयर मेरे सिर के ऊपर है और मुझे उसका वेट नहीं फील हो रहा है, तो मैं उसके अंदर क्रश हो जाना चाहिए. इट्स अ ह्यूज 1000 kg इज वेरी ह्यूज. इतने मास के अंदर तो मुझे क्रश हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है. इसका रीजन ये है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, दे आर ऑल्सो रनिंग. हमारी बॉडी का अपना एक प्रेशर है, ठीक है, एंड दैट प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारी बॉडी का, ये देखिए यहाँ पर अपना एक ओन प्रेशर है, जिस प्रेशर के ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर सारी ब्लड जो है इधर उधर रन कर रहा है वेसल्स,
वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में रन कर रहा है. We have studied in class 7th in veins and in arteries and in capillaries. So it is running with certain amount of blood pressure. वो जो प्रेशर है, जो हमारी बॉडी का प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर है, इट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखिए यहाँ पर ये येलो वाले और ये वाले. सो जितना प्रेशर बाहर से एक्सर्ट हो रहा है फ्रॉम द एयर, इक्वल प्रेशर एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज बीइंग एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी. एंड दोनों प्रेशर जो है क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट है, तो दे कैंसल आउट एंड वी डू नॉट फील द प्रेशर. वी डू नॉट फील द प्रेशर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है. इसीलिए हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इतना हमने डिस्कस किया कि हमारे हेड के एरिया का 1000 kg एयर मास की एयर हम कैरी कर रहे हैं और हमें फील नहीं हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस. ऑलराइट. Now you have come to know that it is the atmospheric pressure which is counteracted by the body pressure and hence we do not feel it. अब atmospheric pressure जो है इसको हम atmosphere, इसकी यूनिट है, इसको पासिंग में करते हैं. atmosphere प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर भी है जिसको हम ATM से मेंशन करते हैं. और भी यूनिट्स हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ही मेंशन करते हैं, उसको ATM लिखते हैं. और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एज यू आर मूविंग अप, जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम प्लेन सरफेस, the atmospheric pressure at the plane surface at the sea level on the land is 1 atmosphere. सारी अर्थ के ऊपर at the sea level जो लैंड के ऊपर एयर प्रेशर है, that is 1 atmosphere, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आप लैंड से हायर एल्टीट्यूड्स पे मूव करेंगे, यानी कि आप हिल्स की तरफ मूव करेंगे, तो सी से लेवल हाई हो जाता है. तो जैसे जैसे आप ऊपर मूव करेंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा. और इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं एंड वो जो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे मूव करते हैं द एयर स्टार्ट्स बिकमिंग रेयरर, थिनर होने लग जाती है एयर, तो प्रेशर भी जो है वो कम होने लग जाता है. तो जब प्रेशर कम होगा, हमारी बॉडी का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी का प्रेशर वही रह रहा है, लेकिन बाहर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो जो ब्लड वेसल्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस imbalance in the pressure outside and inside our body, ये blood vessels rupture हो सकते हैं, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर अब कम हो गया. जब तक हम लैंड पे हैं तो दोनों प्रेशर बराबर हैं एंड काउंटरैक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं, वी डोंट फील द प्रेशर एंड वी फील नॉर्मल. लेकिन जैसे ही हम हाइट्स के ऊपर जाएंगे, माउंटेन्स की तरफ मूव करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा और हमारी बॉडी का प्रेशर सेम रहेगा. तो जो ब्लड प्रेशर है दैट विल रिमेन सेम, बट इट विल बी मोर देन द प्रेशर आउटसाइड, हेंस द जो स्मॉल कैपिलरीज होती है दे टेंड टू रप्चर आउट. आपने नोट भी किया होगा, कई बार आप हाइट्स पे जाते हैं तो जो ब्लड वेसल्स नोज की कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं एंड नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है. कई बार आपने नोट किया होगा व्हेन यू आर मूविंग टू स्मॉलर हायर रीजन्स, एल्टीट्यूड्स में आप जाते हैं, छोटे छोटे हिल्स के ऊपर भी जाते हैं, तो आपको ईयर्स जो है आपके पॉप आउट करते हैं. ठीक है. यू कांट हियर प्रॉपर्ली, आपके ईयर्स में एक अलग सी फीलिंग होती है जहाँ पर आपको ठीक सुनाई देता है, एंड सडनली इट पॉप, दैट साउंड ऑफ पॉप इज देयर इन योर, feel that ears, आपके ears pop as you go higher up in the mountains. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रेशर अराउंड द ears जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, causing imbalance between the pressure inside and outside, and that is why we feel that also. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है, इसीलिए जब हम एरोप्लेन्स में मूव करते हैं, it is at height, there is some kind of pressure which is maintained inside. All right, so all these are applications of atmospheric pressure, what we have discussed right now. That is all with this chapter. Okay, page number 142.
Page number 142. Give two examples each of situations in which you push or pull to change the state of motion of the objects. Only raise your hand and then I will ask you the questions. दो आपने situations बतानी है जहां पर आप push या pull, you apply push or pull to change the state of motion of the object. Answer can vary from every child. Jasmine beta, please answer. Ma'am, the situations, example of situation in which pull or pull can change the motion of the object is pull situation. In order to open a drawer, we have to open करने के लिए आप pull करते हैं. शाबाश. हेजल, आप बता सकते हैं push करने के लिए कोई example? Pushing the door and pushing a heavy box or load. ठीक है, pushing the door to close it. जानवी, इनके अलावा कोई example दे सकते हैं आप? मैम पुलिंग कार्ट. Pulling? मैम कार्ट. Cart, बिल्कुल ठीक है. Pulling a cart. Okay, मन्नत, push का कोई और? Ma'am, pushing a ball on the floor. Pushing a bed, Ma'am, ball. chair, a desk, a table. All right. कोई इससे अलग एग्जाम्पल? वत्सल, Ma'am, pushing the door. बिल्कुल ठीक है बेटा. मैंने Hit the ball. डोर बता दिया. डोर, ड्रॉर. वत्सल, Ma'am, hit the ball. Ma'am, pushing the ma'am, ball. to draw water from the dam. हाँ Ma'am, जी. to draw water from the ma'am well, we have to pull it. Pulling the water out of the well. Jay Aditya. Ma'am, the game of tug of war. Okay, pulling the rope during the tug of war. बिल्कुल ठीक है. Okay, let's go to next question. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख सकते हैं. कोई भी दो सिचुएशन आपने लिखनी है, ठीक है ना, और उसमें मेंशन कर देना है एक पुश एक पुल और साथ में ब्रैकेट में मेंशन कर देना है whether it is push or pull. बिल्कुल ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखिए. गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन in which applied force causes a change in the shape of an object. In the shape of an object, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर आपने फोर्स अप्लाई की जिससे कि ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो गई. स्ट्रेचिंग a rubber band. बिल्कुल ठीक. आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, उसकी शेप चेंज हो गई. जतिन, मैम कंप्रेसिंग अ बलून. हाँ जी. कंप्रेसिंग अ बलून. प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून. इन्फ्लेटेड बलून बोलना है. अगर उसमें हवा ही नहीं है तो उसको कोई फायदा नहीं. इन्फ्लेटेड बलून. वेदांश, Playing with clay. हाँ जी. Playing ma'am. with clay. क्ले, हाँ. प्रेसिंग द डंप क्ले. बिल्कुल ठीक है, उससे शेप चेंज होगी. चितगुन, कोई और एग्जांपल? Ma'am, making a chapati. इनके अलावा समथिंग एल्स अदर देन दिस? चितगुन, Ma'am, plastic. Ma'am, shape of the toothpaste tube changes. बेटा थोड़ा सा अपना माइक पीछे करके फिर बोलिए. Ma'am, the shape मैम of the स्क्वीजिंग अ लेमन. tube changes when it is squeezed. Crushing a paper. बिल्कुल ठीक. जैसे मैंने आपको उस दिन एक्टिविटी में दिखाया, प्लीज किया, Bottle. चेंज हो जाती है. बिल्कुल. सो यू हैव होल लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ. Making a chapati. Add something, Himanshi. Making a ball out of dough to make chapati. मुझे लगता है या तो मेरे नेटवर्क में इश्यूज हैं या आपके. बेटा इट इज नॉट क्लियर व्हाट यू आर सेइंग, सो वील कम टू यू अगेन लेटर. यू कैन Making ball out of dough to make chapati. ओके. चपाती. मेकिंग चपाती. हम डो को रोल करते हैं और उसके बाद हम उसको फ्लैटन करते हैं यूजिंग अ रोलर पेन के साथ में. तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल. वेरी गुड. नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. To draw water from well, we have to I want Sahajpreet to answer me.
Ma'am, pull at the rope. Pull the rope. A charged body dash an uncharged body towards it. I want Tanvi to answer me. A charged body Attracts and drags an uncharged body towards it. Very good. To move a loaded trolley, we have to dash it. We have to Vatsal, Push it. either push it or pull it. दोनों आप अप्लाई करते हैं. कई बार आपको पुल भी करना पड़ता है पीछे आगे करने के लिए. कई बार आपको पुश भी करना पड़ता है. So both the things are right. North pole of a magnet dash north pole of another magnet. Gursimran. Repels. बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो. आर्चर को देखा आपने स्ट्रेच करता है बो को while taking aim at the target. और टारगेट की तरफ एम करने के लिए उसको स्ट्रेच करना पड़ता है बो. Then she then releases the arrow which begins to move towards the target. ठीक है. जैसे ही आपने उसको स्ट्रेच किया उसके बाद छोड़ दिया, then the arrow will start moving towards the target. आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा हुआ है ना, जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं उसमें आपने देखा हुआ है हमेशा ऐसे होता है ना, देखा है ना. तो based on this information, fill up the blanks in the following statements. To stretch the bow, the archer applies force that causes change in its akshita, change in its, okay, akshita is not there, I guess. Janvi, no. Sahajpreet, Ma'am, shape. शेप बिल्कुल ठीक है. जब आपने ऐसे पुल किया तो जो उसकी शेप थी वो चेंज हो गई, क्योंकि वो जो स्प्रिंग है वो पुल आउट हो गई, तो उसकी शेप चेंज हो गई. ठीक है. The force applied by the archer to stretch the bow is an example of dash force. मन्नत. मैम मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर, क्योंकि आपने ऐसे करके मसल्स अपने यूज किए, हैंड मसल्स आपने यूज किए टू पुल इट, है ना. उसके बाद में नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स. कौन सी टाइप ऑफ फोर्स है इट इज? नंदिनी. कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स. जब तक आपका हैंड में और एरो में और बो में कांटेक्ट नहीं होगा, द फोर्स विल नॉट वर्क. मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स. While the arrow moves towards the target, arrow is moving towards the target, the force acting on it are due to dash and due to dash of air. So पहली force कौन सी है which is acting on it? I want Gursimran. Gravity. पहली force of gravity, and the other due to dash of air. And the Hazel. Friction. बिल्कुल ठीक है. इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर. दोनों उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं. फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पुलिंग इट टुवर्ड्स इट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर इज मेकिंग इट्स मूवमेंट टू गेट रिस्ट्रिक्टेड. ऑलराइट. सो फोर्थ वन इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इट एक्ट्स. आपने दोनों चीज करनी है. ये दिस यू हैव टू डू इट. State the effect of force in each case. Let us discuss this. पहला है, we have to know what is the squeezing a piece of. Shall we make a chart and then try to do it? How much time we are left with? We have 2 minutes. Let's make a columns like this, and then you can do it in your notebook somewhere. Simultaneously, you can note down. You can make columns like this. If you have to answer correctly, then also you have to make it like this only. Please go and have a notebook with you, or a notebook. So I'm making a situation जो कि उन्होंने दी हुई already हमें. Then we have to write down the agent exerting force. Agent exerting force
You have to make column like this while you are writing in your notebook also. Object on which force acts. And the last one is the result. Let me go first. Are you able to see it better? Very good. Now let us the first one. The first situation they have mentioned is squeezing a piece of lemon. So यहाँ पर आप लिखेंगे first squeezing a piece of, this we have done also many times, and you have seen it also. So squeezing a piece of lemon. What are the agent which is exerting force?